Namaskar. I'm Professor Ramesh Chandra Gaur, Dean and Vivagdach Indira Gandhi Rashtriya Kala Kendra. I welcome you all to this third day of International Mother Language Day celebration. The first session with the topic Mother Tongue and New Education Policy. You all know, as per new education policy, mother tongue or local or regional language is to be the medium of instruction in all schools up to class 5, preferably till 8th class and beyond. And Sanskrit will be offered at all levels. However, the policy also says no language will be imposed on any student. The NAP has recognized that unless the gap in the language of a child and that teacher is addressed, the universalization of literacy and education remains a challenge. So, on this occasion of Mother Language Day, which started in 2000 with the call from UNESCO and at IGNCA, we celebrate it every year. In this year, 4 day celebrations, today we have honor of having very eminent panel to discuss on this very important subject. We have with us Dr. Atul Kothari, Secretary, Shiksha Sanskrit Uttan Nyas, uh, and there is a well-known, eminent personality who is contributing a lot in the field of education. He is also various capacity as a former General Secretary of Akhil Bharatiya Vidyarthi Pradesh and also co-convener of Shiksha Bachao Andolan Samiti, the NYAS, which he is heading, was founded in 2007. It works for collaboration with sister organization Shiksha Bachao Andolan Samiti, and also he is contributing in the various aspect of uh, development of education policies and program in this country. Sir, we welcome you and thank you for your kind presence, and it's an honor to have you in this program. uh, we have another eminent panelist, Dr. Balwant Santilal Jani, who is currently chancellor of Dr. Hari Singh God University, Sagar, Madhya Pradesh. uh, and he has an extensive teaching experience of 33 years and has held several positions, various prestigious institutions. Uh, Dr. Jani has widely published his research work nationally as well as internationally and contributed immensely in academics and various projects. Currently, he is also the member of the committee has been set up to set up a language university, and he is into the development of languages and preservation of promotion and propagation of languages in India. So we welcome you and thank you for your kind presence. We look forward to hearing you. We also have as a third panelist, Dr. Darshana Oja. Currently, she is working as a faculty in Department of Gujarati in SNDT Women's University, Mumbai. She teaches linguistics, literary criticism, prose and poetry, both from medieval and modern period. Her area of research are medieval literature, comparative literature, postmodern literature, and other fields. Welcome, Dr. Oja. We thanks for your accepting our invitation and be part of this panel. The discussions are being chaired by none other than our member secretary, Dr. Sachidanand Joshi, eminent writer and active person in promoting education policy through various programs. Through this organization, he's heading Bharat Shiksha Mandal. Uh, a number of policies and programs have been drafted for promotion and creating awareness about new education policy. So, sir, thank you very much for agreeing to chair the discussions. Uh, Once again, I welcome you all, and I request uh, Dr. Atul Kothari ji to address the participants and provide his speech. इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सम्मानीय सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जी, केंद्रीय विश्वविद्यालय सागर के कुलाधिपति बड़वंत भाई जानी तथा इस वेबिनार में प्रतिभाग कर रहे सभी विद्वान आचार्य बंधु और बहनों, ये 3 त्रिदिवसीय ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन के लिए मैं आईजीएनसी को बहुत बताता हूँ और इसमें एक महत्वपूर्ण विषय भाषा पर आज चर्चा आयोजित की है। आज 2 दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हम सब ने मनाया है, इसलिए मैं सभी प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये जो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है,
कोई भी यूनेस्को, यूनो के द्वारा जो दिन मनाया जाता है, तो उसके पीछे की एक पृष्ठभूमि होती है, उसका कोई उद्देश्य होता है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय पाकिस्तान के भी 2 हिस्से थे, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान। परंतु पाकिस्तान का वर्चस्व होने के कारण उन्होंने अपनी भाषा, राष्ट्रभाषा उर्दू तय किया और उसका जबरदस्त विरोध शुरू हुआ बांग्लादेश में, वर्तमान बांग्लादेश, तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान। और 21 फरवरी 1952 को ढाका विश्वविद्यालय में बहुत बड़ा प्रदर्शन छात्रों का हुआ, आंदोलन हुआ और छात्र वहां से सीधे विधानसभा की ओर कूच किया और वहां पुलिस की लाठियां चली, गोलियां चली और कई छात्रों ने अपने बलिदान दिए। तब से बंगाल में ये भाषा आंदोलन दिवस में मनाया जा रहा है और एक अपवाद रूप ऐसा देश होगा कि इस दिन छुट्टी रहती है, वहाँ सार्वजनिक छुट्टी है। बाद में 1999 में यूनेस्को ने भी मान्यता दी और 2008 में यूनो ने मान्यता दी और अभी दुनिया भर में ही मनाया जा रहा है। भारत में विचार करें तो पिछले 50 वर्षों में लगभग 200 भाषाएं मृतप्राय हो गई है। 200 भाषाएं लुप्त हो गई और अभी इतनी भाषाएं लुप्तप्राय होने की कगार पर खड़ी है। यही दुनिया भर की स्थिति है। तो ये भाषाएं जो समाप्त हो रही है, कोई एक भाषा समाप्त होने से भाषा नहीं समाप्त होती है, सिर्फ के पीछे की सभ्यता, परंपरा, संस्कृति सारा समाप्त हो जाता है। इसी दृष्टि को ध्यान में रखकर यूनेस्को ने दुनिया भर में इसको मनाना प्रारंभ, और यूनेस्को हर साल एक निश्चित विषय तय करते हैं इसके लिए। तो इस वर्ष शिक्षा और समाज में समावेश हेतु बहुभाषिकता को बढ़ावा देना, यूनेस्को ने अभी भी तय किया कुछ दिन पूर्व ही। लेकिन कैसा योगानुयोग है कि हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 29 जुलाई 2020 को घोषित हुई, उस नीति ने भी इस बात का स्वीकार किया, बहुभाषिकता की बात को इस नीति ने भी भली भांति स्वीकार कर लिया है। और ये शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को अच्छी मात्रा में महत्व दिया है। सारी नीति में स्थान स्थान पर भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने की बातें कही गई है। सबसे पहली बात यह है कि कक्षा 5 तक, क्लास 5 तक, संभव है तो कक्षा 8 तक मातृभाषा, अपनी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, घर की भाषा में शिक्षा, यानी सिर्फ मातृभाषा भी नहीं कहा है, इन सारे शब्दों का उपयोग किया है। क्योंकि हमारा देश इतना विशाल देश है और इतनी विशाल जनसंख्या है, तो कई बार जो जिसको 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं, शेड्यूल 8 की 22 लैंग्वेजेस है, वो अलग अलग स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखना है, उदाहरण के लिए, तो मध्य प्रदेश की, वहां की मध्य प्रदेश की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। लेकिन मध्य प्रदेश में ही झाबुआ जैसे जनजाति क्षेत्र, निम्बाड़ क्षेत्र, गौड़ क्षेत्र, ये सब वहां रहने वाले जो लोग हैं, जनजातीय क्षेत्र के लोग, वहां के बच्चे हिंदी भी ठीक से समझ नहीं पाते। तो इसलिए इस पॉलिसी में इसका प्रावधान रखा गया है कि ऐसे क्षेत्रों में वहां की स्थानीय भाषा जानने वाले शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पाठ्य पुस्तकें भले ही हिंदी में होगी, परंतु उनकी पढ़ाई का माध्यम ये वहां की स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज होगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात इस नीति में आ गई है, क्योंकि हम बहुत समय से ये बात कर रहे थे कि भले ही पहले 22 भाषा में पाठ्यक्रम तैयार करें, परंतु हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं। तो इस बात का इस नीति में बहुत अच्छी तरह स्वीकार किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण बात नीति की है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि भाषा हमारे देश में, स्वतंत्र भारत में, हमारी भारतीय भाषाओं को देश को तोड़ने के लिए उपयोग किया गया इस नीति में। इसीलिए हमारे बच्चे
अपनी सारी भारतीय भाषाओं के बारे में सम्मान की भावना रखे, संवेदनशील बने। इसीलिए एक कार्यक्रम, खास विशेष कार्यक्रम दिया गया है, जो कुछ वर्ष से केंद्रीय विद्यालय संगठन में मनाया जा रहा है। लेकिन उस नीति में इसका स्वीकार किया गया है और बहुत अत्यंत सुंदर कार्यक्रम होते हैं। हर साल दिल्ली में पिछले 4-5 वर्षों से ये कार्यक्रम हो रहा है और उस कार्यक्रम में हर प्रांत के बच्चों को एक भाषा किसी दी जाती है और वहां के बच्चे वो भाषा सीखते हैं, उस राज्य की सांस्कृतिक बातें, सभ्यता की बातें, परंपरा की बातें, खान-पान की बातें वो समझते हैं। और जब वो कार्यक्रम होता है, सबके स्टॉल लगते हैं सभी राज्यों के, तो मान लो कि गुजरात के बच्चों को उड़िया भाषा दिया है, तो आप इस स्टॉल में जाएंगे तो बच्चे आपकी उड़िया भाषा में आपका स्वागत करते हैं और आप स्टॉल देखेंगे तो सारी बातें वहां, जैसे ओडिशा में आप प्रवेश कर दिया है, इस प्रकार का आपको अनुभव होगा। इस कार्यक्रम का नाम एक भारत श्रेष्ठ भारत दिया गया है। तो ये बात भी इसमें, इस नीति में विशेष रूप से जोड़ी गई है, जिससे हम सारे भारत की भाषाओं को एक दिशा में ले जाकर एक भारत में भाषा की एकता और एकात्मता स्थापित हो, ये भी इस नीति में साथ-साथ प्रयास किया गया है। तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि त्रिभाषा फॉर्मूला, थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, जो हमारे देश में वैसे तो पहली पॉलिसी आई थी, फर्स्ट पॉलिसी 68, तब से हमारे देश में लागू की गई है। क्योंकि कोठारी कमीशन ने 64-66 जो उनका कार्यकाल था, 64 से 66, उसमें त्रिभाषा फॉर्मूला की कोठारी कमीशन ने बात की थी और उसा 68 की पॉलिसी में स्वीकार किया गया। लेकिन पूर्ण रूप से हमारे देश में उसको लागू नहीं किया जा सका अभी तक। इसलिए इस नीति में इस पर पुनः आग्रह किया गया है कि त्रिभाषा सूत्र को हम भलीभांति और अच्छी तरह से देश भर में क्रियान्वित करेंगे। और इसमें एक महत्वपूर्ण बात आ गई है कि संस्कृत को पहली बार त्रिभाषा सूत्र में लाया गया है, यानी मेन स्ट्रीम में संस्कृत पहली बार इस प्रकार आ रहा है देश में। तो ये संस्कृत को बड़ा बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो इसका भी इस नीति में विशेष समावेश किया गया है। साथ-साथ हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा, इसको भी द्विभाषी करने की बात कही गई है। अभी तक हमारे यहाँ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन अधिकतर इंग्लिश में ही है और उसमें भी प्रोफेशनल एजुकेशन, जिसको व्यावसायिक शिक्षा कहेंगे, वो इंजीनियरिंग हो, मेडिकल हो, मैनेजमेंट हो, आईटी हो, आदि-आदि, वो सब तो संपूर्ण रूप से इंग्लिश में ही है। सारे सभी स्तर पर द्विभाषा की बात की गई है। बहुत लोग इस पर आशंकित थे। आज भी मॉरिशस के बहुत एक प्रमुख व्यक्ति ने कहा कि वे नीति में लाया है, लेकिन लागू होगा कि नहीं होगा, ये ऐसा प्रश्न उठाया उन्होंने। क्योंकि हमारे यहाँ बातें बहुत की जाती है, लेकिन वास्तव में बहुत कम बातें फिर होती है व्यवहार में। तो मैंने उनको उत्तर दिया। 4 दिन पहले कार्यक्रम में एआईसीटी के सेक्रेटरी थे मेरे साथ में, तो उन्होंने मुझे बताया कि हमने बीटेक के फर्स्ट ईयर, प्रथम वर्ष, इनके सारे पाठ्यक्रमों का प्रारंभ कर दिया है और देश भर के अलग-अलग टेक्निकल यूनिवर्सिटी में, इंजीनियरिंग कॉलेजों में जो इस प्रकार के लोग हैं, उनको हम सबको जोड़कर ये काम कर रहे हैं और संभव है कि अगले साल तक हम सिर्फ हिंदी में नहीं, लेकिन भारत की कई महत्वपूर्ण भाषाओं में हम पुस्तकें तैयार कर लेंगे। कुछ दिन पूर्व ही हमारे माननीय शिक्षा मंत्री ने भी घोषणा की कि आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी संस्थानों में भी द्विभाषी पाठ्यक्रम प्रारंभ। और सिर्फ इतनी घोषणा नहीं की, उन्होंने कहा कि अगले वर्ष से काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, आईआईटी में इंग्लिश के साथ-साथ हिंदी में भी पढ़ाई प्रारंभ हो जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है कि जब आईआईटी में अगर हिंदी में पढ़ाई हो सकती है, अपनी भाषा में पढ़ाई हो सकती है, तो बाकी संस्थानों में क्यों नहीं हो सकती है? क्योंकि आईआईटी हमारे यहाँ एक टॉप लेवल का इंस्टीट्यूट माना जाता है देश में। सिर्फ घोषणाएँ नहीं हुई है, काम प्रत्यक्ष चालू हो गया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात इस नीति में आई है।
साथ साथ इस नीति में ऑनलाइन एजुकेशन, ई लर्निंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन ई लर्निंग यानी इंग्लिश, ये एक भ्रम फैल गया है। तो इस नीति में कहा है कि ई लर्निंग, ऑनलाइन एजुकेशन भी स्थानीय भाषा में देने की योजना बन रही है। तो एक और अच्छी पहल है इस नीति की, और इसमें कई प्रकार के ऐप्स बनाएंगे, कई प्रकार की सामग्री ई लर्निंग में तैयार की जाएगी। इस प्रकार का ये प्रावधान किया गया है। और अभी हमारे यहाँ एक नई कुछ बातें कुछ साल से चल पड़ी है कि अपनी भाषा में या हिंदी में हम ठीक से पढ़ा नहीं सकते, हम ठीक से लिख नहीं सकते। ये बड़े स्वाभिमान पूर्वक लोग बोलते हैं। तो ये वास्तविक स्थिति है। न इंग्लिश ठीक से कर सकते हैं, न अपनी भाषा में ठीक से काम कर सकते हैं। ऐसी आज स्थिति है हमारे अधिकतर लोगों की। तो इसलिए इस बीएड लेवल पर खास विशेष करके जनजाति क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, इस प्रकार के अलग-अलग प्रकार के क्षेत्रों के अनुसार वो भाषा सिखाने का एक विशेष प्रावधान बीएड में किया जाएगा। इसका भी इस नीति में समावेश किया गया है। तो दूसरी बात, एक जो हमारे यहाँ एकल विश्वविद्यालय, ये कॉन्सेप्ट काफी चला है, इंजीनियरिंग का, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, मेडिकल यूनिवर्सिटी, संस्कृत यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी आदि आदि। तो विशेष करके मैं संस्कृत की बात करना चाहता हूँ। संस्कृत यूनिवर्सिटी में सिर्फ संस्कृत ही पढ़ाया जाता है। तो इस नीति में कहा गया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। संस्कृत के छात्र को भी दुनिया का अन्य ज्ञान भी अच्छी तरह से प्राप्त होना चाहिए। इसलिए संस्कृत विश्वविद्यालय को भी बहुविषयक विश्वविद्यालय स्थापित करना, इस दिशा में कदम बढ़ाने की बात भी इस नीति में कही गई है। और एक महत्वपूर्ण घोषणा और है इसमें कि राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान, एक ट्रांसलेशन इंस्टीट्यूट राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया जाएगा। तो ये देश के लिए एक अति आवश्यक बात है, क्योंकि हमारा इतना विशाल देश है, इतनी भाषाएं हैं। उदाहरण करके भाई, कन्नड़ में बहुत अच्छा साहित्य होता है, बहुत रिच साहित्य है, लेकिन हम लोग नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो भाषा हमको इतनी मालूम नहीं है, हमारी भाषा सीधे रूप से नहीं है वो। तो हमारा आपस में भाषाओं में जो अच्छी किताबें, अच्छा ज्ञान है, उसका भी आदान प्रदान हो पहले। ये पहली बात अनुवाद में। और दूसरी बात है कि हम जैसे कहते हैं कि भारत को अपने नॉलेज सोसाइटी बनाना है, ज्ञानवान समाज भारत बने, लेकिन हम कहते हैं ज्ञान मात्र इंग्लिश में ही मिलेगा, और इसलिए ज्ञानवान बनना है तो इंग्लिश सीखो आप पहले। मैं कभी जापान गया तो नहीं, लेकिन आप जैसे विद्वान मित्र कुछ गए, उन्होंने उनको जानकारी है। जापान में कहते हैं कि दुनिया की कोई भी अच्छी पुस्तक निकलती है तो 1 महीने में, विदिन 1 मंथ, उसका ट्रांसलेशन, अनुवाद वो कर लेते हैं। ज्ञानवान सोसाइटी बनाने के लिए दुनिया भर का जो ज्ञान है वो हम अपनी अपनी भाषाओं में देंगे, तो हमारे गांव तक के लोग को पढ़ पाएंगे, जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो अनुवाद संस्थान ये हमारे लिए अत्यंत आवश्यक कार्य अनुवाद का है। अन्यथा हमारे यहाँ अनुवाद यानी कई बार तो उसको बहुत गलत और पाप माना गया है। उसके कई कारण हैं। एक मानसिकता का विषय है, और एक अनुवाद ऐसा किया जाता है कि हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं बहुत सालों से। हर साल संघ लोक सेवा यूपीएससी के पेपर आते हैं, तो हमारे लोग तुरंत करते हैं बाद में, और फिर मंत्री जी को और यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा जाता है कि ये गलतियां है भाषा में। यानी इस प्रकार का अनुवाद कई बार होता है कि सामान्य व्यक्ति कहेंगे कि इंग्लिश अच्छा है इस अनुवाद के बदले, और ये जानबूझकर किया जाता है, एक षड्यंत्र के तहत ये बातें की जाती है। तो इस दृष्टि से देश के लिए एक शब्दानुवाद और भावानुवाद दोनों को एक संतुलित करते हुए अच्छा अनुवाद उपलब्ध किया जाए देश पर, ये एक राष्ट्रीय अनुवाद संस्थान के बारे में घोषणा जो हुई है, इसका बहुत महत्वपूर्ण एक ये कार्य है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि भारत हम रिसर्च में
हमारी पोजीशन क्या है हम सब जानते हैं कि बहुत ही पुअर स्थिति हमारी रिसर्च में हम कह सकते हैं। सिर्फ फाइनेंस की बात करें तो हमारे यहाँ जीडीपी का 0.69% हम लोग रिसर्च के ऊपर खर्च करते हैं और वही अमेरिका में 2.8% खर्च होता है और इजराइल और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में 4.5% आसपास खर्च किया जाता है जीडीपी का। तो इसको लेकर एक राष्ट्रीय अनुसंधान प्रतिष्ठान एनआरएफ नेशनल रिसर्च फाउंडेशन स्थापित करने की बात कही गई है। लेकिन रिसर्च की एक जो हमारे कमजोरी वीकनेसेस है इसका महत्वपूर्ण कारण है क्योंकि विज्ञान तो ये कहता है कि क्रिएटिविटी इनोवेशन रिसर्च ये अपनी भाषा में ही हो सकता है और हम इससे उल्टी दिशा में जा रहे हैं। देश की अधिकतर यूनिवर्सिटी इंग्लिश के अलावा कोई भाषा में रिसर्च करने नहीं देती, अनुमति नहीं देती, परमिशन नहीं देती। तो इंग्लिश में नेट पर तो साहित्य उपलब्ध है, किताबें उपलब्ध है, कट पेस्ट करके बच्चे रिसर्च कर लेते हैं। पीएचडी की डिग्री बच्चों को मिल जाती है, बच्चे भी खुश हैं। पीएचडी की डिग्री के आधार पर नौकरी मिल जाएगी और प्रोफेसर साहब भी खुश हैं कि हमारी लिस्ट रिसर्चर की बढ़ रही है। लेकिन जब एक प्रश्न उसके सामने पूछते हैं कि इसमें कितना लोगों का नीड बेस्ड रिसर्च है, तो उत्तर मिलना मुश्किल हो जाता है। तो अपनी भाषा में शोध अनुसंधान ही सही अनुसंधान शोध हो सकता है। तो एनआरएफ में भारतीय भाषाओं में शोध अनुसंधान के लिए एक विशेष प्रावधान फाइनेंस की दृष्टि से भी रखा जाएगा। ये प्रावधान इस पॉलिसी में रिसर्च के लिए भी बहुत अच्छे पैमाने पर किया गया है और टेक्नोलॉजी के विकास के साथ साथ टेक्नोलॉजी और भारतीय भाषा समन्वय करना, ये बातें भी इस सारी बातों में की गई है। तो इस प्रकार भाषा के बारे में हमारी 22 भाषाएं हैं, उनकी अकादमी स्थापित बात करने की बात कही गई है और ये जो पाली, प्राकृत और फारसी ये तीनों भाषा के राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने की बात कही गई है। तो इस प्रकार के बहुत सारे प्रावधानों की बात इसमें कही गई है। ये प्रत्यक्ष बातें हैं, लेकिन परोक्ष रूप से भाषा का अवसर बहुत बढ़ रहे हैं क्योंकि इस नीति में एक बहुत स्वीकार महत्वपूर्ण बात की गई कि भारतीय ज्ञान परंपरा को हर स्तर पर बढ़ावा देने की बात की गई। तो भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश अगर हमको करना है तो भारतीय ज्ञान परंपरा की अधिक पुस्तकें संस्कृत में ही है लगभग, तो संस्कृत को बढ़ावा जरूर मिलेगा इस माध्यम से क्योंकि हम लोगों का अनुभव है। हमने जब पर्यावरण का एक पाठ्यक्रम बनाया 1 से 12 तक 1 to 12 तक का, तो उस पाठ्यक्रम में भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश हमको करना था। तो हमारे पर्यावरण के विद्वान थे, उनको संस्कृत नहीं आती है और संस्कृत के विद्वानों को पर्यावरण नहीं मालूम था। तो उन दोनों का समन्वय किया गया तो बात पूर्णता की ओर आगे बढ़ गई। तो बिना संस्कृत के विद्वानों का हमारा वो काम अन्यथा पूरा नहीं होता। इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से भी हमारी भाषाओं को आगे बढ़ाने का बहुत सारे रास्ते इसमें खुल दिए गए क्योंकि पूरी नीति का एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि भारत केंद्रित, भारत सेंट्रिक पॉलिसी बनी है। तो भारतीय कला, भारतीय कारीगरी, भारतीय परंपराएं, भारतीय संगीत, भारतीय नृत्य, ऐसी सब बातों के समावेश की इसमें, जिसको समग्रता से कहना है, भारतीय ज्ञान परंपरा का समावेश की इस बात की गई है। और वो भारतीय ज्ञान परंपरा समावेश मैंने जैसे कहा कि बिना संस्कृत हो नहीं सकता, इसलिए संस्कृत जरूर, संस्कृत के आगे बढ़ने के भी द्वार बहुत सारे खुलेंगे क्योंकि हमारे यहाँ आज संस्कृत की स्थिति हम सब जानते हैं कि संस्कृत के विभाग कई यूनिवर्सिटीज में बंद हो रहे हैं, छात्रों की इतनी कम संख्या हो गई। हमारी भाषा, हमारा ज्ञान, इसकी ताकत, इसका पावर हम लोग नहीं समझ पाए, दुनिया समझ रही है। 2 साल पहले की बात है कि जर्मनी के एक विश्वविद्यालय में संस्कृत के जितने
पोस्ट सीटें थी, उससे बहुत ज्यादा एडमिशन के लिए एप्लीकेशन आए थे। जब अमेज़न भारत में आया व्यवसाय के लिए, बिजनेस के लिए, तो शुरुआत में तो इंग्लिश में उन्होंने काम किया, लेकिन उनको किसी सज्जन ने सलाह दी कि भाई भारत में काम आप इंग्लिश में करेंगे तो आपका व्यवसाय नहीं आगे बढ़ेगा, और वो तुरंत समझ गए और उन्होंने हिंदी में फिर और सारी भारतीय भाषाओं में काम शुरू कर दिया। अमेज़न का कई गुना बिजनेस बढ़ गया। ये भारतीय भाषाओं की ताकत है, वो अमेज़न वाला जल्दी समझ गया। आज हमारे गाँव-गाँव तक मोबाइल और ये जो सोशल मीडिया का उपयोगिता बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही है। तो इसमें गूगल का योगदान है मेरी दृष्टि से। शायद हमारी भारत की कोई कंपनी होती तो ये नहीं करती। लेकिन गूगल बहुत जल्दी समझ गया, उन्होंने भले ही अपने व्यवसाय की दृष्टि से विचार किया, लेकिन हमारी सारी भाषाओं में उन्होंने उपलब्ध करा दिया, मोबाइल सॉफ्टवेयर उपलब्ध करा दिए, तो हमारे गाँव के जन-जन तक आज मोबाइल और सोशल मीडिया पहुँच गया। तो ये जो हमारी भाषा की ताकत है, हमारी जितनी कैपेसिटी है, हमारी जितनी स्ट्रेंथ है, भारतीय ज्ञान परंपरा की जितनी स्ट्रेंथ है, वो हम नहीं समझ पाए। दुनिया समझ रही है, दुनिया चाह रही है। तो इस नीति में बहुत बड़ा कार्य किया है कि इस भारतीय ज्ञान परंपरा और भारतीय भाषाओं को पहचान दी है। इनको बढ़ाने के हर प्रकार के प्रावधान किए हैं। और इस कारण से आज कल्पना नहीं कर सकते थे। जब हम कुछ साल से बात करता था मैं भाषणों में कि मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि-आदि आईटी वगैरह क्यों हमारी भाषा में नहीं हो सकता है? तो कई लोग मजाक में कहते हैं कि अतुल कोटरे का दिमाग खराब हो गया है। तो मैं कहता था कि अतुल कोटरे का दिमाग खराब हो गया, अच्छी बात है। लेकिन मैंने कहा हमारे बच्चे रसिया और चीन जाकर वहाँ की भाषा में मेडिकल पढ़ाई करते हैं, तब दिमाग खराब नहीं हो जाता है वहाँ। लेकिन जब आज नीति ने इस बात का स्वीकार किया और सरकार ने इस बातों का क्रियान्वयन की दिशा में कदम बढ़ा दिए शैक्षिक संस्थानों ने, तो बहुत सारे रास्ते खुल गए हैं और बिना भारतीय भाषाओं को स्थापित किए हुए न भारत को हम नॉलेज सोसाइटी बना सकते हैं, न हमारे बच्चे और भारत को हम जैसा समर्थ शक्तिशाली विश्वगुरु भारत का है ऐसा नहीं बना सकते। न हम रिसर्च इनोवेशन में कोई आगे बढ़ सकते हैं। रिसर्च पीएचडी की डिग्रियां तो लाखों की संख्या में बांट देंगे, लेकिन वास्तविक रिसर्च होगा नहीं। इस दृष्टि से इस नीति में भारतीय भाषाओं को जो प्रोत्साहन महत्व देने का प्रावधान किया गया है, वो केंद्र सरकार ने और कुछ शैक्षिक बड़े संस्थानों ने केंद्र सरकार के कार्य तो शुरू कर दिया है। केंद्र सरकार या एआईसीटी जैसे संस्थान, यूजीसी जैसे करा देंगे, अवसर उपलब्ध करा देंगे, लेकिन इससे बातें हो जाएगी क्या? तो मुश्किल है। जब तक मैं और आप तैयार नहीं है, तब तक कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। 15 साल पहले 2 राज्यों में कुछ मात्रा में मैथमेटिक्स के अंतर्गत वैदिक मैथमेटिक्स इंट्रोड्यूस किया गया। लेकिन आज तक उन राज्यों में वैदिक मैथमेटिक्स नहीं पढ़ाया गया, क्योंकि हमारे शिक्षक, हमारे टीचर्स तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा नई झंझट कहाँ से आ गई, हमको सीखना पड़ेगा। क्रियान्वयन में जितनी केंद्र सरकार, शैक्षिक संस्थानों की, राज्य सरकार की भूमिका है, उससे ज्यादा शिक्षा से प्रत्यक्ष जुड़े हुए हम लोगों की दिख है। इसलिए इस शिक्षा नीति जे इतने प्रावधान सारे और विशेष करके आज भाषा की बात कर रहे हैं, तो क्रियान्वयन हमने अपने से शुरू करना पड़ेगा। मैं एक उदाहरण देकर मेरी बात पूरी करता हूँ। एक विश्वविद्यालय में मैं इसी विषय पर बोलने गया था कि शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएं। तो व्याख्यान हो गया, तो व्यवस्था ऐसी थी कि मैं अकेला ही वक्ता था और 40-45 मिनट मेरा व्याख्यान हुआ और फिर इतने ही समय प्रश्नोत्तर हुआ। फिर एक मर्यादा होती है, पूरा हुआ। फिर आयोजक थे हमारे मित्र, उनका बाद में फ़ोन आया मुझे कि बहुत अच्छी चर्चा हुई, प्रश्नोत्तर बहुत अच्छा हुआ।
लेकिन कुछ लोगों के प्रश्न छूट गए। मैंने कहा वो तो ठीक है, छूट जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन भी है, समय की मर्यादा हर कार्यक्रम की होती है। मैंने कहा क्या प्रश्न थे उनके? तो कि हमारे 2-3 मित्रों ने पूछा कि केंद्र सरकार ने नीति में आ गया, सब आ गया, लेकिन हमारी राज्य सरकारें या हमारे निजी विश्वविद्यालय, विद्यालय, महाविद्यालय, प्राइवेट संस्थाएं वो नहीं स्वीकार करेगी तो कैसे होगा ये? तो मैंने उनको कहा कि स्वीकार करे न करे दूसरी बात है, लेकिन मैंने कहा क्रियान्वयन की शुरुआत आपके मित्र को आप पूछिए कि आप अपने सिग्नेचर अपनी भाषा में करते हैं क्या? मैं सभी मान्य विद्वान प्रतिभागियों को के सामने ये विषय रखना चाहता हूं। मैं नहीं कहता हूं सब हिंदी में हस्ताक्षर करें सिग्नेचर। हम अपनी अपनी भाषा में हमारी सिग्नेचर हस्ताक्षर करते हैं क्या? हम हमारे घर पर हमारी नेम प्लेट, नाम पट्टिका लगाती है और हम अपनी भाषा में लगाते हैं क्या? हम अपना सामान्य घर में कोई कार्यक्रम, प्रोग्राम, फंक्शन, इनविटेशन, निमंत्रण पत्र अपनी भाषा में छपवाते हैं क्या? हम हमारे बच्चों को अपनी भाषा के विद्यालय, स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजते हैं क्या? तो मैंने कहा आप अपने मित्र को ये प्रश्न पूछिए सारे, तो क्या आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो मुझे लगता है कि समाज में ये बातें आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत बड़ा भ्रम फैल गया है। ये भ्रम को दूर करने के लिए इस प्रकार की जो आज आपने इस संगोष्ठी का आयोजन किया है, ऐसी सीरीज ऑफ संगोष्ठियां, सेमिनार, वेबिनार हमने करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी का दोष नहीं निकाल रहा हूं। जो 150 साल से हमारी पर थोपी गई एक भाषा है और जो भ्रम फैलाया गया है विद्वानों के द्वारा, बड़े लोगों के द्वारा, शिक्षा के द्वारा आदि आदि, ये भ्रम को दूर करने के लिए, भ्रम को तोड़ने के लिए ऐसे प्रयासों के द्वारा ही धीरे-धीरे बात आगे बढ़ती है। क्योंकि हम हर बात में वैज्ञानिकता की, प्रमाण की, लॉजिक की बात करते हैं। दुनिया में जितने शोध, अनुसंधान, रिसर्च हुए हैं, अध्ययन हुए हैं भाषा के संबंधित, सबका निष्कर्ष एक ही है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एजुकेशन में लेवल से पीजी तक अपनी भाषा ही होना चाहिए। ये पूरी वे साइंटिफिक अप्रोच है, पूरी वैज्ञानिक दृष्टि है। जब भाषा की बात आती है तब साइंटिफिक अप्रोच, लॉजिक की बात क्यों दरकिनार कर देते हैं? तो इस देश को, इस देश के आम जन तक ये बातें पहुंचाना कि वैज्ञानिकता क्या है, तार्किकता क्या है, उस रास्ते पर हमने चलना है, हमने भेड़-चाल में नहीं जाना है। इसके बड़े पैमाने पर जागरण करते हुए और स्वयं से इस इम्प्लीमेंटेशन, क्रियान्वयन की बातें शुरू करते, स्वयं से परिवार में, संस्थान में, दिशा में हम अगर कार्य करेंगे, तो मुझे लगता है कि इस नीति में जो इस बात का स्वीकार किया गया है, इनको वास्तव में हम प्रैक्टिकल धरातल पर उतार सकेंगे और फिर से भारत को एक ज्ञानवान नॉलेज सोसाइटी, विश्व गुरु की बनाने की दिशा में हम सब आगे बढ़ पाएंगे। ऐसे विश्वास, ऐसे विजन के साथ इस विषय की ओर हम देखें, यही आप सबसे प्रार्थना। मुझे आपने इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में बुलाया और मेरे विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसलिए आप सभी आयोजकों का बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर अतुल कोठारी जी, और मैं पूरी तरह से आपसे सहमत हूँ कि ये हमारी जो भाषाएं हैं, स्पेशली आपने कहा कि संस्कृत मेन स्ट्रीम में आ रही है और हमारे नासा जैसी ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि संस्कृत इज अ वेरी साइंटिफिक लैंग्वेज और उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम करना बहुत आसान है। तो आप बिल्कुल सही, आपके विचार हैं कि हमारी लैंग्वेजेस की रिस्पेक्ट अगर हम नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे करेगी। तो थैंक यू अगेन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं डॉक्टर बलवंत जानी जी को आमंत्रित करूंगी अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है और अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बधाई एवं शुभकामनाएं। आज के हमारी इस गोष्ठी के अध्यक्ष पद पर जो है वो भारतीय कला के, साहित्य के बड़े ज्ञाता आदरणीय सच्चिदानंद जी, और जिन्होंने अभी अभी बहुत विस्तार पूर्वक और मुद्दा सर जिसको हम कहे
और तर्कपूर्ण रूप से अपने विचार प्रस्तुत किए, ऐसे हमारे बड़े आदरणीय अतुल भाई कोठारी जी, और जिनको हम सुनने वाले हैं वो दर्शना बहन ओझा। अभी गौड़ साहब आरंभ किया और रितु जी सूत्र संचालन कर रही है। ये दोनों को भी मैं बधाई दे रहा हूं कि ऐसे अच्छे विषय पर इस समय आपने ये गोष्ठी का आयोजन किया। अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा को कैसे मनाया जाए दिवस को, विषय भी आपने अच्छा चयन किया है, पसंद किया है। मातृभाषा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थान बड़ा विषय है ऐसा नहीं कहूंगा, बहुत सही विषय है। आवश्यक एवं अनिवार्य जो था, होना चाहिए था, जो आज तक हुआ नहीं, ये पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति ऐसा नाम भी मिला, न्यू नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बन रही है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने राष्ट्र की हम बनाते हैं तो उसमें स्वाभाविक तौर से टॉप पर, अग्र स्थान पर है तो वो मातृभाषा ही होना चाहिए। राष्ट्रभाषा अलग बात है, पूरे राष्ट्र में बोली जाती है, वो राजभाषा कही जाती है, सही बात है। लेकिन मातृभाषा की महत्ता, मातृभाषा का महत्व हमें सिर्फ जानना इतना ही नहीं, उनका विनियोग, उनका एप्लीकेशन भी करना है, यह भी एक बहुत आवश्यक बात है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहली बार ये बात दिखाई देती है। प्रारंभ से लेकर हायर एजुकेशन तक, उच्च शिक्षा तक, प्रारंभ में तो मातृभाषा ही माध्यम बने और साथ ही साथ दो भाषा भी सीखे। ये जो आयोजन बनाया है, अतुल भाई ने बहुत सही ढंग से त्रिभाषा फॉर्मूला नाम दिया, वो सही अर्थ में प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में ही होनी चाहिए। मातृभाषा की महत्ता अपनाने से आज पूरे राष्ट्र में मातृ प्रेम, मातृभाषा के प्रति, मातृभूमि के प्रति प्रेम की एक लहर छा गई है। सब लोगों को ठीक लग रहा है कि बच्चे मातृभाषा में पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, लर्निंग सीखेंगे। ये याद रखने की, गोखने की बात नहीं है शिक्षा, तो सीखना तो मातृभाषा में ही होता है। तो मातृभाषा की सोच, मातृभाषा की नींव डालना प्रारंभ से ये बात रखी है। बाद में भी आए, अंत तक मातृभाषा का महत्व तो रहा है। तो पहली बार मातृभाषा के साथ साथ संस्कृत, जिनमें से ये मातृभाषा का जन्म हुआ है, जिसको संस्कृत का परिचय है, शब्दावली का परिचय है, वो भारतीय भाषा समझ पाएगा। बोलना अलग बात है, लेकिन भारतीय भाषा में जो शब्दावली है वो संस्कृत से अनुप्राणित है, संस्कृति से अनुप्राणित है। तो संस्कृत एवं संस्कृति जुड़ी हुई है मातृभाषा के साथ। ये भाषा, ये भूषा और भोजन, तीन मातृभाषा के साथ जुड़े हुए बात है। ये हमारी भूषा, हमारी पोशाक भी हमारी पहचान है, हमारा भोजन हमारी पहचान है, हमारी भाषा हमारी पहचान है। तो ये मातृभाषा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई ऐसा नहीं, राष्ट्र का परिचय, नेशन का परिचय, राष्ट्र का ख्याल, ये मातृभाषा से पनपता रहा। ये एक बड़ी बात आई, क्योंकि मातृभाषा को महत्व देंगे तो समझेंगे कि आज हम राष्ट्र है, जो राष्ट्र में हमारा श्वासोश्वास हो रहा है, उसी राष्ट्र की
हमारे प्रदेश की प्रादेशिक भाषा मातृभाषा अभ्यास में शामिल होनी चाहिए। एक आदमी ने मुझे प्रश्न किया कि सर, ये हमारे कालिदास है, वाल्मीकि है, जानते हैं लोग नाम उस, लेकिन उसके कार्य, उसके लिटरेचर से बहुत लोग क्यों परिचय नहीं है, और सब लोग शेक्सपियर के, ओथेलो के, हैमलेट से क्यों परिचित है? ये क्यों है? भारतीय लेखक की कृतियों से परिचय न, नाम से परिचित है, काम से क्यों परिचित नहीं है? और शेक्सपियर के सब ये क्यों सर? मैंने कहा, उनका जवाब बहुत, ये अंग्रेजी में टेक्स्ट बुक में आते हैं, शेक्सपियर जीवित है क्योंकि वो टेक्स्ट बुक का अंश है, पाठ्यक्रम के साथ जुड़ गया है। हमारी मातृभाषा की कई कृतियां, कई बड़े बड़े राइटर्स की कहानी, कविता पढ़ने में आएगी, टेक्स्ट बुक में आएगी। तो टेक्स्ट बुक में आएगी इतना ही नहीं, बालक के दिमाग में, बालक के चित्त में छा जाएगी, और उनकी प्रज्ञा को पुरस्कृत करने वाला ये साहित्य है। भाषा भाषा नहीं है, लैंग्वेज नहीं है, वो स्पीच भी है, वाणी भी है, और साथ साथ हमारी संस्कृति भी है, क्योंकि उसमें साहित्य छिपा हुआ है। भाषा की पहचान कथा से, कहानियों से, कविता से होती है। तो सिर्फ मातृभाषा शिक्षा नीति में आया इतना ही नहीं, मातृभाषा के माध्यम से हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा समाज, ये सब आया। कविता बालक पढ़ते हैं, रेन्स गो, बारिश बंद हो जाओ, मुझे स्कूल जाना है। हम कहते हैं आओ रे बारिश, आओ रे बारिश। हम उनको स्वागत करते हैं। विदेश में तो लोग थक गए हैं, बारिश से, बर्फागारी से थक गए हैं, हिमप्रपात से। तो ऐसी कविता आती है। तो हमारे बच्चे, हमारी हमारा वातावरण से बिल्कुल जुड़ा हुआ न हो, ऐसी संस्कृति पढ़ रहे हैं, गा रहे हैं, ये ठीक नहीं था। दूसरी बात मुझे कहनी है साथ ही साथ कि मातृभाषा राष्ट्रीय शिक्षा नीति में आई इतना ही नहीं, मातृभाषा में संशोधन बने, मातृभाषा में ज्यादा से ज्यादा संशोधनात्मक, आस्वादात्मक बातें आए, इसलिए उच्च शिक्षा में भी उनको एक बहुत बढ़ावा मिला। शोध में भी उनकी यूनिवर्सिटी बन रही है, भारतीय भाषा विश्वविद्यालय बनने वाला है, और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन की स्थापना होने वाली है। अनुवाद और अर्थघटन की एक भारतीय संस्थान होने वाली है, IITI। ये बड़ी बात है। क्यों? अनुवाद बहुत आवश्यक है। अनुवाद बहुत आवश्यक इसलिए है कि हर भारतीय भाषाओं में जो ज्ञान है, विदेशी भाषा में भी जो ज्ञान है, इंफॉर्मेशन है, उससे हम वंचित रखना नहीं चाहते हैं। इसलिए अनुवाद, लेकिन अनुवाद दृष्टि बिंदु से होना है। इंडोसेंट्रिक ट्रांसलेशन स्टडीज, नॉट यूरोसेंट्रिक ट्रांसलेशन स्टडीज, इंडोसेंट्रिक। भारतीय भाषाओं की डिक्शनरी बनेगी और संस्कृत में से ट्रांसलेशन कराना है। ये सबसे बड़ी बात मातृभाषा
संस्कृत के साथ झूठती और भारतीय शिक्षा नीति को आगे देने वाली, भारतीयता की पहचान कराने वाली पहलू ये शिक्षा नीति के साथ संजोई हुई है। कहते हैं, उसमें बताते हैं कि ट्रांसलेशन होगा, लेकिन सोर्स भाषा में से टारगेट लैंग्वेज में जाने से पूर्व संस्कृत में होगा और संस्कृत में से हम टारगेट लैंग्वेज में उनका ट्रांसलेशन करेंगे। ये सबसे बड़ी भारतीय रीति, भारतीय कंसेप्ट, संकल्पना ट्रांसलेशन की हमारे साथ शिक्षा नीति के साथ साथ हमारे पास आ रही है। ये सबसे बड़ी बात है। तो शिक्षा नीति में जो जो बातें रखी है वो सामान्य बातें नहीं है। शिक्षा नीति में से भारतीयता पनपती है, राष्ट्रीयता उद्घाटित हो रही है। कैसे? ऐसे पहलू, ऐसी बातें, ऐसे अभिगम, दृष्टिपूत, सूझपूर्वक के अभिगम से ये सब बातें आ रही है। तीसरी बात भी मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति में मातृभाषा की महत्ता की वजह से क्या हो रहा है, ये बात भी बताने रहा। आजकल कम्युनिकेशन लैंग्वेज अंग्रेजी बन गई है। ऐसा मानते हैं कि अंग्रेजी ही कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, संपर्क भाषा है। गलत ख्याल है। मैं देख रहा हूं गुजरात में, दिल्ली में, हर प्रदेश, हर प्रांत में मातृभाषा के न्यूज़पेपर ज्यादा है, अंग्रेजी के न्यूज़पेपर कम है। उनकी पढ़ने वालों की संख्या भी कम है। क्यों? गुजरात में मैं देखता हूं 2 या 3 ही अंग्रेजी पेपर है और 14 से 16 गुजराती न्यूज़पेपर है। शाम को भी निकलते हैं। चैनल भी गुजराती, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा की चैनल ज्यादा से ज्यादा है। अंग्रेजी चलचित्र देखने वाले और हिंदी चलचित्र देखने वाले की संख्या में बहुत गैप है। ये गलत ख्याल है। अंग्रेजी भाषा नहीं, अंग्रेजी ठोकी दी गई भाषा है। राष्ट्र की पहचान अपनी भाषा से है। आई वॉज इन सोरबोन, फ्रांस में, पेरिस में। मैं सोरबोन यूनिवर्सिटी में था, तो जो मैं बात बताता था, मैं बताने वाला था, वो मैंने कोर्स अपना भेज दिया था। वो कन्वर्टेड कम्युनिटीज, कल्चर एंड लिटरेचर। कन्वर्जन हर जगह है विश्व में। गुजरात में भी कन्वर्जन हुआ था, तो मुस्लिम बन गए थे, लेकिन पहले वो हिंदू थे। तो आज उनके साहित्य में, उनके सामाजिक क्रियाकांड में, क्रियाकलाप में भारतीयता कहां निखरती है, उस पर मेरा कोर्स था सोरबोन। तो पूरा मेरा कोर्स मटेरियल उन्होंने फ्रेंच में ट्रांसलेट किया, सबको दे दिया। और उन्होंने जो मुझे क्वेश्चंस किए वो फ्रेंच में आए, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके हिंदी में वो मुझे बताते थे। मिजोला इंडिया, हमारा वहां कल्चरल सेंटर भी है। तो इतना यूरोप में इतनी बड़ी पुरानी यूनिवर्सिटी का आज भी माध्यम अपनी मातृभाषा है। जर्मनी में भी, इटली में, सभी जगह यूरोपियन कंट्रीज बहुत आगे निकल गए शोध में भी, अंग्रेजी की वजह से नहीं। अपने बच्चे अपनी मातृभाषा में सोचे, जो सपने अपनी भाषा में देखते हैं वो सपने अपनी भाषा में कहे। पढ़ते पढ़ते ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, उसके साथ हमारा जुड़ाव है। आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है, उनकी कहीं क्रिटिसिज्म नहीं हो रही है। कोई नहीं कह रहे हैं कि गलत है। अरे बड़े एजुकेशनल सेंटर खोलकर जो बैठे हैं ना, ये भारत के नागरिक हैं।
अंग्रेजी माध्यम की स्कूल चलाने वाले भी बड़े बड़े बिल्डिंग खोल लिए है, पब्लिक स्कूल बना ली है, वो भी विरोध नहीं करते किसी ने, क्योंकि वो सब आखिर में तो बच्चे थे, उन्होंने मातृभाषा में पढ़ा था, मातृभाषा में कहानियां सुनी थी और यहां तक पहुंचे। तो मातृभाषा में शिक्षा पाकर इतनी ऊंचाई पर आ गए, हमें कुछ खोया नहीं है, हमने बहुत कुछ पाया है। तो उनको लग रहा है कि मातृभाषा में शिक्षा देकर हम अपने बच्चे को आगे बढ़ाएंगे। शायद हमको आय में कमी होगी, नहीं, हम बेहतर पढ़ाएंगे, ठीक से पढ़ाएंगे। ऐसी एक सोच पूरे राष्ट्र में प्रचलित हो गई है, प्रसारित हो गई है। ये मेरे ख्याल से हमारे राष्ट्र की एक सांस्कृतिक घटना है। हर बार शिक्षा नीति आई तो उनकी टीका करते हैं, विरोध पक्ष तो खास करते हैं, लेकिन अभारतीय विचारधारा वाले भी चुप होकर देख रहे हैं, क्योंकि समाज ने स्वीकृति दे दी है और इस तरफ कमिटेड है गवर्नमेंट। तो उन्होंने बजट में भी बता दिया कि ऐसा राष्ट्रीय शिक्षा के नीति के अनुसार हम संस्थान करने वाले हैं, इसके लिए 50 करोड़ का बजट है। देखो, शिक्षा नीति का एप्लीकेशन, उनका विनियोग करने के लिए भी सरकार ने कदम सोचे हैं। ये मातृभाषा के महिमा का पर्व है, महिम्न स्तोत्र है मातृभाषा का। ये शिक्षा नीति ही नहीं है, शिक्षा विचार है, शिक्षा संकल्पना है जो भारत में पहले थी। तो प्राचीन भारतीय सोच जो भारत की पहचान थी, नालंदा थे, विक्रमशिला थी, सब आते थे, चाइनीज वगैरह लोगों ने अपनी किताब में लिखा है। संज्ञान के बड़े बड़े विचारक थे, शोधक थे। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये राष्ट्रीय संस्थान ने, IGNCA ने सही समय पर ये अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ठीक से मनाया जा रहा है, पहली बार, क्योंकि मातृभाषा को शिक्षा में सही स्थान मिला है। भारत बहुत खुश है, विश्व में आज बात प्रचलित हो रही है। वर्षों में अमेरिका की गुजराती लिटरेरी एकेडमी के लोगों के साथ डिस्कशन किया और मैंने अंग्रेजी से परिचित लोगों को हम गुजराती अल्फाबेट कैसे सिखा सकते हैं, ये सिखाया, बात कही। तो मैंने पहली बार एस किया, ये क्या है? तो कहा बच्चों ने एस। नो, इट्स नॉट एस, इट्स अ ड ऑफ गुजराती लैंग्वेज। ओ वेरी इजी। मैंने एस करके बीच में लाइन डाल दी, क्या है? सर, इट्स अ स्लीपिंग लाइन ऑन एस। नो, इट्स अ नॉट स्लीपिंग लाइन ऑन एस, इट्स अ क ऑफ गुजराती लैंग्वेज। ओ इट्स वेरी इजी। 20 मिनट में गुजराती अल्फाबेट मातृभाषा में पढ़ने के लिए लालायित बच्चों को अल्फाबेट सिखा दिया। आज ये सब उपकरण, ये सब लोग खोजने लगे हैं, मिलने लगे हैं, इंटरेक्शन करने लगे। क्यों? राष्ट्र ने सोच डाली, राष्ट्र ने विचार डाला, राष्ट्र ने नीति बनाई कि मातृभाषा शिक्षा की एक बड़ी महत्वपूर्ण घटक रहेगी। मुझे बहुत आनंद है, प्रसन्नता है। घड़ी में देखकर हमारे सामने देख रही है तो पता लग जाता है कि मुझे भी अब बात ज्यादा नहीं, लंबा नहीं है, लेकिन अतुल जी ने जो बात बताई पूर्व पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान की, वो बिल्कुल सांस्कृतिक उदाहरण है। राजकीय सत्ता झुकाने वाला कोई है तो भाषा है। उन्होंने कहा, नो, वी डोंट वांट उर्दू, वी वांट बांग्ला। अपने भाई मुस्लिम, अपने भाई थे, अपने सगे संबंधी थे,
अपने राज्य के हिस्सेदार थे, उन्होंने कहा नो, वी डोंट वांट योर लैंग्वेज, वी वांट आवर लैंग्वेज बांग्ला, और एक बांग्लादेश अस्तित्व में आ गया। भाषा के प्रभुत्व का इस सदी का, 20वीं सदी का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण भाषा के नाम पर राष्ट्र उद्भव ना हुई, ये बात है। भाषा की महत्ता, मातृभाषा की श्रेष्ठता और मातृभाषा से हमारा मज्जागत संबंध की बात कहने का अवसर हमें प्राप्त हुआ, इसकी प्रसन्नता के साथ, और सच्चिदानंद जी, अतुल भाई जैसे विद्वानों की संगत प्राप्त हुई, उनकी पंगत में बैठने का अवसर मिला, उसकी भी प्रसन्नता के साथ अपने विचार को विराम देता हूं। नमस्कार, भारत माता की जय। थैंक यू डॉक्टर जानी, आपके जो विचार हैं बहुत ही मतलब अमूल्य हैं, और मैं इसमें सिर्फ आपको ये बताना चाहूंगी, मैं फाउंडर हूँ एक छोटी सी संस्था की, भाषा आकृति ही उसका नाम है, और हम IGNCA के साथ करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आपने इतने बढ़िया विचार अपने अभी सुनाए हमें, हम भी अपने देश की जो ज्ञान है, एंशिएंट विजडम है, उसको बाहर ले जाना चाहते हैं, सारे देशों में समझाना चाहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेजेस हैं और हमारा जो विजडम है, उन्होंने ही गाइडिंग फोर्स रहे हैं वो ग्लोबली सबके लिए। तो उसी के लिए, उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं IGNCA के साथ। इनफैक्ट आपको बताना चाहूंगी, लास्ट ईयर हमने IGNCA के साथ भी ये दिवस मनाया था, और हमने अपनी 22 मातृभाषाओं में कैलिक्शन भी लगाई थी। वाह। तो उसमें हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वर्ड्स जो पहले 5 हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, 22 भाषाओं में आर्ट की फॉर्म में प्रस्तुत किए थे। तो थैंक यू अगेन, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और हम ऐसे ही काम करना चाहते हैं आगे भी, और करते रहेंगे आप लोगों की गाइडेंस से। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर ओझा को। मेरे जो विचार है, अभी सभी आदरणीय गुरुजनों ने अपने वक्तव्य रखे हैं। मेरा मानना ये है कि जो भी काम करना है, वो हमें अपने बेस से, हमारे जो मूल है वहां से स्टार्ट करना अति आवश्यक है। अभी का जो समय है, वो समय में हम जिस समाज में जी रहे हैं, उसके साथ, भाषा के साथ सबसे बड़ा कार्य जो है वो जुड़ा हुआ है। भाषा विशिष्ट है, इसलिए हम लोग भी विशिष्ट है, क्योंकि ये आदान प्रदान जो हम कर रहे हैं वो भाषा के माध्यम से हम कर रहे हैं, और भाषा के द्वारा हम सबके साथ अपने जो विचार है वो लोगों तक पहुंच रहे हैं। मल्टीकल्चरल, हमारे भारत की बहुभाषिता, वो भारत की पहली पहचान है। इतने धर्म, इतनी जातियां, इतनी भाषाएं, हमारा जो उसके साथ वास्तविक जो जुड़ान है वो सांस्कृतिक भी है, ऐतिहासिक भी है। तो इसी के कारण हमारी जो संस्कृति है और भाषा है, वो दोनों एक दूसरे के साथ डायरेक्ट कनेक्टेड है। मुझे ये कहना है कि मनुष्य संस्कृति, मनुष्य समाज, मनुष्य साहित्य, ये सभी में जो कुछ भी मीडिएटर है, वो मीडिएटर है, जो माध्यम है, वो माध्यम है, वो भाषा है। वो भाषा में मैं इसके लिए ये कह रही हूँ कि बहुत सारी हमारी जानी सर ने बात की कि हमारी अगर भाषा समृद्ध है तो भी समृद्ध भाषा के कारण बनेगा। अभी हमारे डिपार्टमेंट में भी ये महोत्सव, ये पर्व मनाया गया, मातृभाषा। एक ही बात आई, जो सेंसस पढ़े कि दुनिया में 6,900 लैंग्वेजेस है, और उसमें लास्ट 10 साल में 2,500 भाषाएं लुप्त होने लगी हैं। बहुत सारी भाषाएं ऐसी हैं कि जो मृतप्राय होने के कगार पे है। तो ये हमारी दुनिया की इतनी सारी भाषाएं, भारत की इतनी सारी भाषाएं, ये सब भाषा में भाषा जो हमारा माध्यम है, वो राष्ट्र को, मनुष्य को अगर हमें समझना है तो सिर्फ और सिर्फ जो माध्यम है वो भाषा है।
हमारा जो बीइंग है, वो बीइंग के साथ भी हम तो ही जुड़ पाए अगर हमारी जो भाषा है वो भाषा समृद्ध है। तो आज जो मातृभाषा, आज की जो पीढ़ी, वो उसकी ये अंग्रेजी भाषा के साथ जो बातें हो रही है, बराबर है, वो इतनी ही तनावपूर्ण है, क्योंकि हमें हमारी जो अगली पीढ़ी है, वो अगली पीढ़ी को हमारी जो मातृभाषा है, वो मातृभाषा वो बोल पाए, वो सिखाना है। सब हम जब स्कूल में ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है, वो स्कूल में जब हम इम्पोज नहीं करनी है, लेकिन आज की जो पेरेंट्स है, वो पेरेंट्स भी अपनी मातृभाषा नहीं बोल रहे हैं। जो पेरेंट्स है, वो भी अंग्रेजी के साथ ही बच्चों के साथ बातें कर रहे हैं। आज हमारा ये कहना है कि ये जो अगर ये पेंडेमिक पीरियड में हम भाषा वाले, स्पेशली मैं गुजराती पढ़ाती हूँ, हम भाषा वाले इतने टेक्नोसेवी नहीं हैं, फिर भी ये पेंडेमिक पीरियड में इतनी टेक्नोलॉजी हमने खुद नहीं, क्योंकि हम अपने बच्चों तक हमारा जो एकेडमिक ये कार्य है वो पूरा कर पाए। तो अगर हम ये सीख सकते हैं, तो हम भाषा को स्पष्ट उच्चारण पे काम क्यों नहीं कर सकते? बच्चे ये अपने माता पिता के पास से अपनी भाषा सीखते हैं, उसके पास से लेते हैं, वो जो सुनते हैं वही वो बोलते हैं। हमारी जो यूनिवर्सिटी है महाराष्ट्र में स्थित है। 105 साल पुरानी ये यूनिवर्सिटी भारत रत्न महर्षि धोंडो केशव कर्वे जी ने जब महाराष्ट्र में ये स्थापना की थी, तब आज एक ऐसी ये यूनिवर्सिटी है जिसमें 4 मीडियम में शिक्षा दी जा रही है। सिर्फ भाषा नहीं, सिर्फ लिटरेचर नहीं, लेकिन सिर्फ साहित्य नहीं, लेकिन अगर आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है, अगर आपको साइकोलॉजी पढ़ना है, तो इस महाराष्ट्र में एकमात्र यूनिवर्सिटी है जिसमें गुजराती मीडियम में भी ये सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा जो मुद्दा है वो यही है कि हमारी निस्बत अपनी भाषा के प्रति कितनी है। अगर हम कमिटेड नहीं हैं, अगर हम प्रतिबद्ध नहीं हैं, तो हम आज जो स्थिति हम फेस कर रहे हैं, आज जो स्थिति हम देख रहे हैं, वो स्थिति के जवाबदार कौन है? वो सिर्फ हमें खुद को भी पूछना पड़ेगा। हमने क्या अपने बच्चों को हमने सिखाया कि परियों की कथा कैसी है? हमने सिखाया कि रामायण महाभारत में कृष्ण राम कैसे थे? वो एक आदर्श जो समाज है उसकी बात जो उसमें जो सीख है, क्या हमने सिखाई? मैंने ये देखा है कि इतनी ये जो हमारे घर का जो माहौल है जिसमें पेरेंट्स अपनी मातृभाषा में बच्चों से बात नहीं करते हैं, लेकिन वही अगर सिंचैन देखता है तो बहुत अच्छी हिंदी बोल पाता है। वही बच्चा गुज्जू भाई कॉमेडी देखता है, वही बच्चा अपनी पेरेंट्स के साथ अंग्रेजी में बात करता है, लेकिन उसको वो बीइंग के साथ जुड़ा हुआ है, इसके लिए वो पूरा प्रयत्न करता है कि वो अपनी मातृभाषा में सीखे। उनको अच्छा लगता है कि गुजराती सीरियल कैसे है, गुजराती में क्या इसको क्या कहा जाता है। क्योंकि हम महाराष्ट्र में स्थित है, इसके लिए हम चारों भाषा में हमें बात आती है। हमें हिंदी आती है, हमें मराठी आती है, गुजराती आती है और आती है। तो ये जो आदान प्रदान का जो माहौल है, वो आदान प्रदान का माहौल तभी ये एक भाषा में से और एसिडिटी में एक ऐसा वातावरण है, तो ये जो माहौल है जिसकी वजह से आज ये वाद न होके संवाद तभी बन पाता है जब एक विभाग लैंग्वेज का दूसरे विभाग के साथ इस तरह से जुड़ता है।
आज सभी मराठी दिवस भी गुजराती का है और गुजराती दिवस भी मराठी का है। तो वो कब बन पाता है? जब सभी भाषाओं में संवाद होता है, सभी भाषा एक साथ पंचभाषी विद्यार्थिनी साहित्य सम्मेलन करता है और एक ही स्टेज पर से वो पूरा सभी लोगों तक सभी भाषा एक साथ सुनाई देती है, जिसमें संस्कृत गरबा भी रहता है, गुजराती भवाई भी रहती है, मराठी पवाड़ा भी रहता है और हिंदी के जो भी लोक माध्यम है उसमें भी पूरी बात सुनाई देती है, सब सुनते हैं। और इतना कल्चरल कॉन्टेक्स्ट एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम रोज एक शब्द अलग जो भाषा है उसका सुनते हैं और उसको अपने जो है वो अपने ही कम्युनिकेशन में हम ये बात कर पाते हैं। भाषा, ध्वनि, भाषा रूप, ये सभी अपने साथ जितना सुनेंगे उतना हम क्लैरिटी के साथ हम वो बोल पाते हैं, हम वो जो है हमें याद रहता है। हमें हमारी जो बचपन की जितनी भी कविताएं हैं, वो जो नाद है, वो नाद का भी, वो ध्वनि का भी, हमारे जो उसमें हमारा जो खुद का जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व बनने में वो भाषा ही है जो हमें बनाती है। तो एक और धीरे धीरे हमें वो एक आदत हम बनाते हैं और धीरे धीरे तो ये बच्चों को भी, हमारे बच्चे भी, क्योंकि वो कॉस्मोपॉलिटन में बड़े हुए हैं, तो एक साथ बहुत सारी भाषाओं के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं और हमें गुजराती में क्या है, हिंदी में इसको क्या कहते हैं, मराठी में क्या कहते हैं, वो पूरा हम उनको ये अर्थ के साथ ये बताते हैं। तो भाषा हमारी शक्ति है, क्योंकि हमें जो अभिव्यक्ति करनी है वो अभिव्यक्ति करनी है, हमें लोगों तक पहुंचना है, तो वो सिर्फ और सिर्फ भाषा के माध्यम हम ये दूसरों तक पहुंच सकते हैं और बाकी जो भाषा में जो साहित्य है वो साहित्य हमारे पास भी पहुंच पाता है। तो भाषा ये माध्यम है। आज की पीढ़ी के साथ हम कितना कुछ, आज पेंडेमिक में रामायण महाभारत सीरियलें आई तो बच्चों ने देखी और ये जाना। हमने कब अपने बच्चों को अपने पास बिठा के हमारी जो ये हमारे साहित्य में या हमारी भाषा में जो लोक साहित्य बच्चों को सुनाने के गीत के साथ इतनी सारी जो कथाएं, इतनी सारे गीत, इतनी सारा संस्कृति का बोध, इतना मूल्य बोध जितना भी है, वो भी हमने कब अपने पास, तो हमें पहले खुद पे मेहनत करनी है। तो हम बच्चों को अपनी जो मातृभाषा है वो मातृभाषा सही तरीके से, सही स्पष्ट उच्चारण के साथ उनको वो सिखा पाएंगे। हमारे जो फोनेटिक्स है वो फोनेटिक्स के साथ बनती है, तब जाके हम वो फोनेटिक्स बच्चों को सिखाते हैं। हमारी भाषा भी देवनागरी की भाषा में से ही आई है, हालांकि हम शिरोरेखा नहीं करते हैं गुजराती में, लेकिन फिर भी हम वो देवनागरी की सभी जो भाषा है, कितना सारा आज महाराष्ट्र में मोडी लिपि में पड़ा हुआ है, लेकिन मोडी लिपि को जानने वाला ही कोई नहीं है। इतना शासकीय काम जो मोडी लिपि में है बहुत सारा है जो है, वैसे ही गुजराती में इतना सारा है जो हस्तप्रत विद्या में है। जानी सर बहुत उसमें पारंगत है वो सिखाने में, जो बहुत साल पहले जो लैया लोग लिखते थे वो हमें नहीं आता है। आज हमें वो सीखने की जो जिज्ञासा है, सीखने का जो क्यूरियोसिटी है, वो हमारे पास नहीं है। हम लदे हुए हैं, हम बहुत अपने ही काम में, हमें ये सब जो है वो जो हमें जो सिखाना है, कहाँ हम वो जो विस्मय की बात है, कहाँ वो जो कल्पना की बात है, यही हम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम सर्जनात्मकता की जो बात है वो कैसे, तो वो जो कल्पना है जो उसके साथ ही क्रिटिकल एनालिटिकल ये सभी उसी के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो अपना विस्मय, अपनी कल्पना वो जो है
उस पे वो कैसी हो गई है, सीमित हो गई है। तो हमें उसके पर्याय ढूंढने हैं, हमें उस पे काम करना है, हमें बहुत बार इसको रिवाइव करना है। हमारे जो विकास में तभी जो एक सर्वांगीण विकास जो भाषा के द्वारा बनने है, वो तभी हम कर पाएंगे, तभी हम भाषा, कला, संस्कृति, बौद्धिकता, ये बहुत सारी जो बातें हैं, वो बहुत सारी बातें हम कर पाएंगे। ये जो तथ्य है, वो तथ्य पे काम करना आवश्यक है। हमारी जो ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें भाषा के अलग-अलग दृष्टिकोण से हमने बहुत सारी बात उसमें है, हालांकि बहुत चैलेंजिंग है उसमें, लेकिन फिर भी बहुभाषिकता, भाषिकता, अभी इंटरडिसिप्लिनरी, इंट्राडिसिप्लिनरी, ट्रांसडिसिप्लिनरी, पान डिसिप्लिनरी, इतनी सारी जो बातें हैं वो हम तभी कर पाएंगे। एक अच्छा अनुवाद करने के लिए भी आज मेरी मातृभाषा गुजराती है, मैं पूरा प्रयत्न कर रही हूँ कि मैं अपनी जो राष्ट्रभाषा के जो स्पष्ट उच्चारण है, वो उच्चारण के साथ आप लोगों तक पहुंचूं, क्योंकि मेरे विचार मेरी गुजराती की भाषा में आते हैं, क्योंकि मेरे पास सीमित शब्द भंडोल है। इसके लिए मैं, अगर हमें ग्लोबल की बात करनी है, तो हमें संवाद, इसी तरह का जो संवाद है वो संवाद होना चाहिए। संवाद करेंगे तो एक दूसरे की भाषा को जान पाएंगे, उसका स्वीकृत, उसका जो बहुत सारे चैलेंजिंग ये भी है, जैसे हम जब बच्चों को गुजराती भाषा के साथ हम जो बातें करते हैं, तो सबसे पहला प्रश्न गुजराती भाषा ही नहीं, भारतीय भाषा में ही सबसे पहले प्रश्न ये करते हैं कि रोजगार कहाँ है। रोजगार के बारे में भी ये जो अपनी जो शिक्षण नीति है, उसमें भी ये जो एक बात है, वो बात उसमें आएगी। अपना सिर्फ शिक्षक नहीं, सिर्फ शिक्षण नहीं, सिर्फ शिष्य नहीं, सिर्फ शिक्षण नीति नहीं, लेकिन वो जिज्ञासा, वो संवाद, वो तार्किकता, बौद्धिकता, वो नूतनता भी, उसके बारे में भी हमें ये नीति, आज जो हमारे भारतीय शिक्षण नीति है, उसमें बहुत सारा विचार जो है वो उसमें, तो इट्स अ मैटर ऑफ बैक टू रूट। हमारी जो प्राचीन शिक्षण शैली है, जिसमें जो विद्या है, जिसमें जो अनुसंधान है, हमें ये सब तरीके की सब जो है उसके जो उसका शिक्षण, शिष्य और शिक्षण पद्धति, सभी की जो चिंता है, हम करेंगे तो हम विकास कर पाएंगे, तो हम ग्लोबल टू वोकल कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात जो ये है कि ये जो नीति के मूल में जो मानवता की बात है, ह्यूमैनिटीज की बात है, भाषा विभिन्नता, कितना अच्छा लगता है जब एक ही साथ हम इतनी सारी भाषाएं, और हमारे भाषा में ये कहा जाता है, आपकी भाषा में ये क्या कहा जाता है, इसी तरह का जो संवाद है, वो जो संवाद है वही हमारा जो ज्ञान है, वो ज्ञान बढ़ाता है। और इसी ये जो हमारी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें संस्कृति, प्रगति और इसकी जो बात हुई है, यानी जो सार्वत्रिकता की बात है, जो समग्रता की बात है, वो जो बात है, वो इसके रूट में है। चारित्र निर्माण की बात है, वो भी उसके रूट में है। तो इसी तरह हम व्यवहार में जब लाएंगे, तो हालांकि चैलेंजेस है, लेकिन फिर भी हम अपनी जो हमारा जो सिलेबस है, वो सिलेबस इस तरह से कर सकते हैं, उसमें सीबीसीएस में ये ला सकते हैं। उसमें जो है वो सीबीसीएस हालांकि आ चुका है, उसमें एक इंटरडिसिप्लिनरी स्किल बेस, वैल्यू बेस, ऐसे जो है वो हम ये जो शिक्षण नीति है उसके मूल में ये सब है, जिसके बदौलत इतने सेमिनार, इतने वेबिनार, इतने बायलैंग्वेज, इतने हाई क्वालिटी जो प्रोग्राम हुए, उसमें भी हमारी जो भाषा को केंद्र में रख के हमारी जो बात हो रही है, वही अपने आप में एक बड़ा अपना अचीवमेंट है। बात हमें अगर जो मेहनत करनी है,
वो अपनी निस्बत पे करनी है, मेहनत करनी है अपनी प्रतिबद्धता पे करनी है, मेहनत करनी है अपने अनुबंध पे करनी है, और अपनी ही भाषा के साथ वो कैसे रोजगार लक्षी बने, कैसे वो उसका सॉफ्टवेयर अपनी भाषा में हो, जिसके कारण हम ये जो बहुत सारे जो प्रश्न है वो प्रश्नों के जवाब हम बन पाए। टेक्नोलॉजी और लैंग्वेज, ये सब टेक्नोलॉजी लैंग्वेज, टेक्नोलॉजी लिटरेचर, टेक्नोलॉजी कल्चर, ये सभी जब एक साथ जुड़ेंगे तो ये इसी तरह से हमारी जो भाषा आज जो लुप्त हो रही है उसका जो हमें हमारे जहन में उसकी जो चिंता है वो चिंता बहुत जितनी लुप्त हुई है उसमें और जो भाषाएं है जिसका लुप्त होने के आसार है वो लुप्त ना होने पाए, इसी के लिए ये भारतीय राष्ट्र नीति में ये जो विचार जो किया है वही अपने आत्म है, और उसी के साथ हमारा जो विकास है वो विकास भी जुड़ा हुआ है। बस मुझे ये तक दी आपके साथ ये इतनी बात वो संवाद करने की, इसके लिए हम आप सबके ऋणी हैं, और बहुत कृतज्ञ भाव से मैं आप सबकी आभारी हूँ जिसके लिए मुझे ये तक दी गई। और मेरे जो विचार है जो हम आज एज अ लैंग्वेज टीचर, एज अ लिटरेचर के में जो हम फेस कर रहे हैं वही जो बात है वो बात आपके सामने रखने का पूरा प्रयास मैंने किया है। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर ओझा, आपके विचारों के लिए थैंक यू सो मच। अब मैं आई विल लाइक टू कॉल अपॉन डॉक्टर जोशी फॉर हिज क्लोजिंग रिमार्क्स। आप सभी को नमस्कार। परम आदरणीय अतुल कोठारी जी, परम आदरणीय बलवंत जानी जी, परम आदरणीय डॉक्टर दर्शना जी, रितु जी, प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर जी, और इस पटल पर जुड़े हुए सभी विद्वान देवियों और सज्जनों। Technically speaking, I should have spoken in Hindi, but when I was going through the comments, there are participants who were requesting to continue the discussion in English as well. It is an emotional question. When we are celebrating the Mother Language Day, what should be the appropriate medium of talk? It be in your own mother language, in your own mother tongue, or it should be in a language which is followed by majority of people. Anyway, I would try to keep my deliberations in both the languages, so that in Hindi and English both things can be understood. One friend says Hindi or Punjabi also, but I don't know, I am not well conversant with Punjabi. Anyway, the question of mother language has been an important question, and it has been dealt in the national education policy with great enthusiasm and details. It is for the first time, perhaps, in the history that this matter of mother language, mother tongue has been so deeply understood by the policy makers. As we all know, the policy is a result of deep deliberations, consultation with all stakeholders, may it be students, may it be the teachers, may it be the parents, may it be the school administration and a public at large. I don't think there has been any deliberation in the history as broad-based as this national education policy has been. So we are all lucky that we are witnessing the implementation of such an historic policy. And when I say this, why this is historic, we must understand that this is an effort to decolonize the entire education system. And when we say decolonizing the entire education system, the root goes back to 1835 when English Education Act was implemented by the British government, particularly Lord Macaulay. तो हम लोग अक्सर लॉर्ड मैकाले को भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं प्रभावित करने, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को कहीं ना कहीं उसके न्यूनता बोध की ओर, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की ओर ले जाने के लिए दोषी मानते हैं। पर हम ये भूल जाते हैं कि उन सब की जड़ में कहीं ना कहीं हमारी अपनी मातृभाषा के प्रति उपेक्षा भी है। वी हैव ऑल्सो नेग्लेक्टेड
the importance of our own mother tongue, our own mother language. So it is very important that we all not only follow the mother tongue, not only follow the basic nuances, basic importance of the mother tongue, but also respect the language as a whole, because language only denotes the basic culture of any person or any society. If we don't have good language, we cannot be called as cultured or enlightened people. So language is a basic tool to communicate as well. These are the important things which we must understand. I know we are definitely running short of time. The webinar is supposed to be getting over by 4, so I would not overshoot the time. But I would request all the participants to follow what our enlightened speakers have told. We really had an enlightened panel, like श्री अतुल कोठारी जी, जिन्होंने 2 दिन पहले ही बहुत महत्वपूर्ण एक लेख भी मातृभाषा के महत्व पर लिखा है। और एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि जो देश, विश्व के जो अग्रणी देश हैं, वो सभी अपनी-अपनी मातृभाषा में काम करते हैं। All the leading nations in the world work in their own mother tongue, own language. It is also pertinent to mention here that the US UNESCO report says that 197 languages in India are endangered. There are places where people speak language. The population of such persons are less than 10,000. Such languages are in great danger. We all must come forward and protect, preserve all these languages as well. हम सब जानते हैं कि इन सभी भाषाओं में विपुल साहित्य लिखा गया है, विपुल साहित्य की रचना हुई है, और उन सब को पढ़ने के लिए भी एक बहुत बड़े समृद्ध विद्वान समाज की आवश्यकता है. So we must understand. I must also congratulate Professor Gaur and Bhashakriti, entire team of Bhashakriti, for coming together and celebrating this International Mother Language Day. IGNCA has been a leading institution for the nationwide celebration of International Mother Language Day. Every year we seek the blessings of Honorable Vice President of India, Honorable Education Minister, Honorable Culture Minister, and all other dignitaries, Vice Chancellors, institutional heads to celebrate this day. We feel honored and privileged to be acknowledged as a leading institution for taking forward the mother language mission. My best wishes to all and congratulations to the organizers. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you for your blessings, and you are always encouraging and supportive. And with this, we would like to express our sincere thanks to our all panelists, respected Dr. Atul Kothari ji, Professor Balwant Santilal Jani ji, Dr. Darshana Oja, for your valuable time and wonderful message and your blessings. And we look forward to your continuous support and guidance in future also. And with these words, I would like to thank all the participants. Thank you very much.